Hi everyone, welcome to Time and Text. Let's start our classes. Nutrition. There are two modes of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition can further be divided into two categories that are photoautotropic nutrition and chemoautotropic nutrition. So in this video, we are going to discuss about photoautotropic nutrition. So the word photo means light, auto means self, and trophic means nourishment. Trophic means nourishment. Okay. So photoautotropic nutrition is a mode of nutrition in which organisms makes their own food using light energy. फोटोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं लाइट एनर्जी को यूज करके. Now the second term is photoautotrophs. What do we mean by photoautotrophs? So photoautotrophs are the organisms who shows photoautotropic mode of nutrition, or we can say that the organisms who prepare their own food using light energy. सो फोटोऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फोटोऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं लाइट एनर्जी को यूज करके. ओके. The third term is photosynthesis. What do we mean by photosynthesis? So photosynthesis is a method through which plant prepares their own food. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स जो है वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. नाउ प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड. Plant uses carbon dioxide from air, water from soil, and using sunlight and chlorophyll they prepare their food in form of carbohydrates and releases oxygen. ग्लूकोज क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है. ओके. सो नाउ द क्वेश्चन अराइज, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा होता है? तो फोटोसिंथेसिस सारे ग्रीन पार्ट्स में हो रहा होता है. प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं उन सारे ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, बट मेनली इट टेक्स प्लेस इन लीव्स. मेनली लीव्स में होता है, इसलिए लीव्स को हम किचन ऑफ प्लांट भी कहते हैं. ओके. दैट्स वाई लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट. So leaves takes carbon dioxide from environment and releases oxygen back to the environment. We all living organisms like animals, humans breathe in oxygen and releases carbon dioxide, but plant take in carbon dioxide and releases oxygen back to the ecosystem. And plant do this, we humans breathe through our lungs, okay, but plant exchange gases with the help of stomata. Now what is a stomata? Stomata is a tiny pores present in surface of the leaf. Lower surface of the leaves have tiny pores like structure, and those pores are known as stomata. Stomata is guarded by stomata is surrounded by guard cells. Now what is guard cells? Guard cells is a bean shaped structure like this. bean shaped structure होता है, इसे हम guard cells कहते हैं. ये स्टोमाटा को सराउंड किए रहता है. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द function of guard cells? So guard cells monitors opening and closing of stomata. स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड सेल्स मेंटेन करते हैं. सो लेट्स सी हाउ गार्ड सेल्स मेंटेन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. When water enters in guard cells swells, and due to swelling of guard cells, stomata pore opens, and due to which exchange of gases takes place. CO2 comes in and O2 goes out. Okay. जब वाटर प्रेजेंट होता है गार्ड सेल्स में, तो वाटर की वजह से जो गार्ड सेल्स है वो स्वेल कर जाते हैं, वो सूज जाते हैं. स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, स्टोमाटा का जो पोर्स होता है वो ओपन हो जाता है, ये पोर ओपन हो जाता है,
और यहाँ से फिर गैशियस एक्सचेंज होता है, और जब गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है तो एट द सेम टाइम ट्रांसपिरेशन का भी प्रोसेस होता है. ओके. Now, when water is absent, when there is no water, so guard cell shrinks, and due to shrinking of guard cells, this stomatal pore gets closed. And when stomata is closed, there is no exchange of gases and there is no transpiration. Okay. जब वाटर गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, गार्ड सेल्स स्वेल कर जाते हैं, गार्ड सेल्स सूज जाते हैं, और गार्ड सेल्स के स्वेलिंग के कारण स्टोमाटा का जो पोर होता है वो ओपन हो जाता है और गैसेस एक्सचेंज होता है. CO2 अंदर जा रहा होता है और O2 जो है वो बाहर आ रहा होता है. और जब गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है एट द सेम टाइम ट्रांसपिरेशन का भी प्रोसेस हो रहा होता है. वहीं अगर वाटर एब्सेंट होता है, गार्ड सेल्स में वाटर नहीं होता है, तो गार्ड सेल्स जो है वो श्रिंक डाउन कर जाते हैं, और जिसकी वजह से स्टोमाटा का जो पोर होता है वो क्लोज रहता है. और जब स्टोमाटा क्लोज रहता है तो कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा होता है और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है. ओके. सो फंक्शन ऑफ स्टोमाटा. स्टोमाटा का क्या क्या फंक्शन है? स्टोमाटा का पहला फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में भी स्टोमाटा हेल्प करता है. ठीक है. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट लूज वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ओके. अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा होगा कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस वाटर साइकिल में हेल्प करता है, राइट? तो इससे क्या होता है, जो वाटर प्रेजेंट है प्लांट में वो एवापोरेट हो जाते हैं वाटर वेपर के रूप में. Now, the second product is water. How plants takes water? So plant takes water from soil. Root of the plant have small hair-like structure present. Hair-like projections known as root hair. Okay. Root of plant have hair-like structure. And this hair-like structure is known as root hair. This root hair absorbs water present in soil through the process of osmosis. ठीक है. रूट हेयर्स जो होते हैं वो सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू. नाउ रूट में तो वाटर पहुंच गया ऑस्मोसिस के थ्रू. अब रूट क्या करता है? प्रेशर अप्लाई करता है, वाटर को स्टेम की तरफ पुश करता है. ठीक है. वाटर को स्टेम की तरफ पुश कर रहा होता है, और ये जो प्रेशर अप्लाई करता है पुश करने के लिए, उस प्रेशर को हम रूट प्रेशर कहते हैं. उस प्रेशर को क्या कह रहे होते हैं? रूट प्रेशर कह रहे होते हो. ओके. अब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस तो हो रहा होता है गैसेस एक्सचेंज के दौरान, तो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है? ट्रांसपिरेशनल पुल लगता है, और ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिसकी वजह से वाटर जो है स्टेम्स के थ्रू अलग अलग पार्ट्स में चला जाता है. प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में वाटर मूव कर जाता है. ठीक है. अब यहाँ पे एक वर्ड है जाइलम. वाटर मूव्स थ्रू जाइलम. ये जाइलम और ट्रांसपिरेशनल पुल क्या है? तो ट्रांसपिरेशनल पुल तो हमने देखा. ट्रांसपिरेशनल पुल को हम लाइक पंप की तरह समझ सकते हैं. जब हम मोटर ऑन करते हैं तो पंप क्या करता है? प्रेशर क्रिएट करता है पानी को अपनी तरफ खींचने के लिए. तो उसी तरह ट्रांसपिरेशनल पुल जो है वो क्या करता है? एक प्रेशर अप्लाई करता है वाटर में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए. ठीक है. और जाइलम क्या है? जाइलम को हम पाइपलाइन के जैसा समझ सकते हैं. ये एक पाथ प्रोवाइड करता है वाटर को प्लांट के अदर पार्ट्स में जाने के लिए. ठीक है. तो ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू वाटर जो है वो लीव्स में आ जाता है, प्लांट के अदर पार्ट्स में चला जाता है. तो हमने देखा कि वाटर भी आ गया. नाउ द थर्ड थिंग इज सनलाइट. ओके. क्लोरोफिल एंड सनलाइट. अब सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है, और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में डिफरेंसेस होते हैं. देयर आर डिफरेंसेस इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स. सो प्लांट सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स नोन एज क्लोरोप्लास्ट. प्लांट सेल्स के पास एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स होता है जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट के पास एक स्पेशल पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है. क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है. क्लोरोफिल का काम क्या होता है? तो क्लोरोफिल के वजह से ही प्लांट्स को ग्रीन कलर मिलता है,
और दूसरा इसका फंक्शन होता है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. ओके, सो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स सनलाइट and helps in process of photosynthesis. अब now we are going to discuss about events that takes place in photosynthesis. वो कौन कौन से इवेंट्स हो रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस में. तो सबसे पहले तो एब्जॉर्ब्ड सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. जो सनलाइट क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब किया गया था वो सनलाइट क्या होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है. इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स व्हाट, जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर जाता है. ओके, हियर CO2, H2O, chlorophyll and sunlight is used for the process of photosynthesis to make carbohydrate and release oxygen. So this water gets split, ये टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. ओके, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में. ओके, सो पहला तो होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यानी वाटर स्प्लिट कर जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और इस स्प्लिटिंग के प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं. दूसरा होता है रिडक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो व्हेन आई से इट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, it means it changes into glucose. Okay, so don't get confused. Now, अब हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या होता है, कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ होता है. नाउ द क्वेश्चन इज वाई इट इज़ सॉरी, जो फूड बनता है, जो फूड प्रिपेयर होता है ना प्लांट्स के थ्रू, ये ग्लूकोज प्रिपेयर हो रहा था, तो इसका यूज़ क्या होता है, प्लांट इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करता है. सो इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोथ, रेस्पिरेशन, सेल रिपेयर. ओके, तो प्लांट इसको अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ करता है. ओके, फ्लावर्स और फ्रूट्स बनाने के लिए यूज़ करता है, सेल को रिपेयर करने के लिए यूज़ करता है. सो आप यूज़ करता है इन सारे कामों के लिए. अब जो ग्लूकोज बच जाता है, जो यूटिलाइज नहीं हो पाता है, वो स्टोर हो जाता है. तो प्लांट्स में ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. ओके, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. और इन ह्यूमंस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ह्यूमंस में जो ग्लूकोज है, एक्सेस ग्लूकोज, जो एट द टाइम यूटिलाइज नहीं हो पाता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है. नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़रूरी क्यों होता है. तो पहला रीज़न तो है फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन. ठीक है, जो भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो क्या करते हैं, CO2 को एक्सेल करते हैं. ठीक है, CO2 रिलीज करते हैं, और उन्हीं CO बैक टू द इकोसिस्टम, एंड उन CO2 को प्लांट यूज़ करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. ठीक है, और यही ऑक्सीजन जो है वो हमें ब्रीदिंग में हेल्प करता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीद, मतलब वी कांट ब्रीथ विदाउट ऑक्सीजन. ओके, सो फर्स्ट द मेन रीजन इज फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन. अब ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसके अलावा ये CO2 और O2 का बैलेंस क्रिएट करता है, क्योंकि जो भी CO2 रिलीज़ किया जा रहा है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, उसको ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दरमियान यूटिलाइज कर ले रहा है और ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है. क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो CO2 बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और ऑक्सीजन ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ह्यूमंस बीइंग जो है या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा इट डिक्रीजेस ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि CO2 को ये फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर रहा है, तो ये क्या करता है, CO2 का जो अमाउंट है वो हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि ये बैलेंस भी क्रिएट कर रहा है ना, बढ़ने नहीं देता हद से ज़्यादा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मेंटेन रहती है, बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाती, ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज़ करने में हेल्प कर रहा होता है.
एंड द सेकेंड मेन रीज़न इज़ फॉर प्रोवाइडिंग फूड, इट प्रोवाइड्स फूड, क्योंकि प्लांट्स जो है वो सनलाइट को यूज़ करके अपना खाना बना रहे होते हैं, तो प्लांट इज़ अ प्राइमरी प्रोड्यूसर हियर। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, सो इट इज़ अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड, ओके, इट इज़ अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो इवेंचुअली सारा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स एनिमल या प्लांट फीडिंग जो भी एनिमल्स जो प्लांट पर फीड करते हैं वो नहीं होंगे, और उनके वजह से पूरा इकोसिस्टम फिर कोलैप्स कर जाएगा। सो इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो आज की क्लासेस के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।